عمران خان نے اقوام متحدہ کو جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کیا بیان جاری۔ حریت چیف سید علی شاہ گیلانی کے تجہیز و تکفین پر اٹھائے سوالات۔ بھارت نے دیا اپنا جواب۔ پاکستان کو ملک کے اندر دہشت گردوں کو مدد کرنے کا الزام ترک کرنا چاہے۔ پاکستان اپنے اندرونی حالات بہتر کرے تو کافی ہوگا۔ اس بڑے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کو گمراہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مرکزی وزراء کا جموں کشمیر دورہ جاری۔ بڈگام جا کر وزیر مملکت نے ترقیاتی منظرنامے کا لیا جائزہ۔ آئی ٹی آئی بڈگام میں انتظامات خود دیکھے۔ تکنیکی تعلیم اور آئی ٹی کو مزید فروغ دینے کا دیا عندیہ۔ مہندر سنگھ دھونی کرکٹ اکیڈمی میں سری نگر میں ہوا باقاعدہ آغاز۔ معروف کوچز دیں گے اکیڈمی میں کرکٹ کھلاڑیوں کو کوچنگ۔ ایڈوائزر بصیر خان نے بتایا اس سے کھلاڑیوں کے لیے اہم سنگ میل۔ کرکٹ کے مقابلے کھیلنے سے قبل کوچنگ حاصل کرنا لازمی تاکہ بڑے مقابلوں میں آپ لوگ واپس ہار کے نہ آئیں۔ اور شہر سری نگر کے علمگری بازار جڑی بل میں کووڈ کرفیو کا باقاعدہ آغاز۔ سرکاری ملازمین پر کوئی بندشیں نہیں ہوں گی عائد۔ انتظامات گھروں تک پہنچانے کا سرکار نے کیا وعدہ۔ 10 روزہ کورونا کرفیو پر عوام کا ملا جلا رد عمل۔ اسپیشل رپورٹ دیکھنے والے سبھی ناظرین تک سری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تجمل کا سلام پہنچے۔ ناظرین، جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا بھر کی اہم خبریں اسپیشل رپورٹ کا حصہ ہوں گی، لیکن شروعات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے اس اجلاس کے بعد جس میں عموماً ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا بھر کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ امسال بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے سٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی اور جموں کشمیر میں متعدد پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل موڈ پر اپنے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا، جموں کشمیر میں معروف حریت لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے تجہیز و تکفین پر بھی انہوں نے سوالات کھڑے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن کے نام پر جموں کشمیر میں مسلمانوں کے معاملات پر بھی نظر رکھنا بہت لازمی ہے۔ جموں کشمیر کی مجموعی صورتحال اور ہندوستان اور پاکستان کے مابین تعلقات کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا، illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. And the most glaring in case of India, where this RSS BJP regime is being allowed to get away with human rights abuses with complete immunity. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, from is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent
another conflict between Pakistan and India. India's military build-up, development of advanced nuclear weapons, and acquisition of destabilizing conventional capabilities can erode mutual deterrence between the two countries. The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. 80,000 Pakistanis died. Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House, and the world must know that in Pakistan there were 480 drone attacks conducted by the US. 480 drone. पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे थे अफ़गानिस्तान के हालात व वाक़यात, जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात और सीज़ फायर के बाद, जिस वक्त सरहद पर बाइडन गवर्नमेंट आने के बाद अमेरिका में जब सदारती इंतखाबात मुकम्मल हुए और तब्दीली के बाद वज़ीर-ए-आज़म हिंद और आला ओहदेदारों के बीच में, दोनों ममालिक के बीच में जो सीज़ फायर हुआ उसको अभी तक बड़ी कामयाबी के साथ देखा जा सकता है। इमरान खान मुख्तलिफ अमूरात पर बातचीत रख रहे थे। इधर भारत ने इमरान खान के इस रद्द-ए-अमल पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया भर में इस वक्त ग्लोबल लेवल पर दहशतगर्दों के मस्कन के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि पाकिस्तान वक्तन फ़ौक्तन वहाँ पर दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से बोलते हुए इस मौके पर मुकर्रीन खातून ने कहा कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की मदद की जा रही है उससे दरअसल बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो हटाने की ये कोशिश है। भारत ने अंदरूनी मामलात पर इस पाकिस्तान के मुदाखलत पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया। हिंदुस्तान ने बांगी दुहुल कहा कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस बड़े प्लेटफार्म का यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. The entire world has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people.
भारत का रद्दअमल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इन दिनों दरअसल जो जनरल असम्बली के मेंबरान हैं वो अपने अपने ममालिक के हवाले से और दुनिया भर के मामलात के हवाले से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अब की बार भी जिस वक्त आपको याद होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे तब बुरहान वानी का एपिसोड गुजरा था। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बातचीत रखी तो जम्मू कश्मीर में 35 से 370 का खात्मा, डिलिमिटेशन कमीशन और उसके बाद मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक ने अपना रद्दअमल ज़ाहिर किया। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से ख़िताब करेंगे और दुनिया भर के दीगर मामलात पर भी वो अपनी बात रखेंगे। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है कि जमात इस्लामी के अरकान और लीडरान पर NIA की छापामारी का सिलसिला अगले हफ्ते दोबारा शुरू किया जा सकता है। ज़राए के हवाले से खबर आई है कि जमात इस्लामी के अरकान यानी रुकन जो बने हैं या जो जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं या जमात इस्लामी के लीडर रह चुके हैं, जिला सदूर, अमीर जमात, तहसील सदूर और उनके खिलाफ कौमी तहकीकाती ब्यूरो या दीगर एजेंसीज जो है छापामारी मजीद तेज कर सकता है। और अब नाज़रीन वापस आते हैं जम्मू कश्मीर की दीगर खबरों पर। जिला बडगाम से हमारे नुमाइंदे डार अशरफ की इत्तला है कि आज मरकजी वजीर ने जिला बडगाम पहुंचकर कई एक प्रोजेक्टों का वहां पर संग बुनियाद रखा। मरकजी वजीर राजू चंद्रशेखर ने जिला बडगाम का दौरा किया। ITI बडगाम में मरकजी वजीर ने तकनीकी तालीम, IT और मॉडर्न तकाज़ों पर तालीम को किस तरह से आम किया जाए, मौसर बनाया जाए, इस पर एक तकरीब के दौरान खिताब किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर कई तलबा को और कई मुलाजमीन को असनाद भी तकसीम की गई। देखिए, आज मैंने देश भर में ITIs विजिट किए हैं, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स विजिट किए हैं। मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, आज का जो ITI विजिट था ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ITIs आई हैव विजिटेड। तो एक तो मैं कंग्रेचुलेट कर दूँ स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे ITI ऐसे कैपेबिलिटीज़ हमने बनाए यहाँ पर। एक तो वो, दूसरा जुलाई 15, 2021 को प्रधानमंत्री ने हमें एक निर्देश दिया था कि एक नया अप्रोच होना चाहिए और वो नया अप्रोच है जॉब क्रिएशन। तो मैं आपको शेयर कर दूं आपके साथ कि हमारा एक विजन है कि हर ITI और हर ट्रेनिंग सेंटर एक जॉब क्रिएशन सेंटर बनना चाहिए और उसके लिए जो भी करना है इंडस्ट्री लिंकेजेस, मार्केट लिंकेजेस। इधर PDP सदर और साबिक जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज अपने पार्टी ऑफिस वाक़या पोलो श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब किया। तकरीब के दौरान बानिहाल के PDP यूनिट ने महबूबा मुफ्ती को इलाके के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। PDP यूनिट बानिहाल का वफद आज पार्टी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती से मुलाकात होने के बाद बानिहाल के मकामी लोगों ने बस स्टैंड में मुश्किलात, टोल प्लाजा और दीगर मसाइल को महबूबा मुफ्ती के सामने रखा। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि बानिहाल के अवाम के मसाइल अनगिनत है, जिसमें बिकुन में मकामी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जबकि टोल प्लाजा लगने की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती के अलावा PDP के सीनियर लीडर नईम अख्तर अंद्राबी के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। बहुत मुश्किलात हैं। सबसे पहले इनका वहाँ बस अड्डे का बहुत बड़ा मसला है, गाड़ियाँ कहीं खड़ी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इतनी सारी कंपनीज वहाँ काम करते हैं जिनका CSR का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, इनको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। बहुत इनका इमरजेंसी हॉस्पिटल वहाँ तैयार है मगर वो इस वक्त अभी तक वो काम नहीं कर रहा है। तो बहुत अनथक मुश्किलात हैं। टोल प्लाजा है, जबकि टोल प्लाजा के इर्द गिर्द कुछ किलोमीटर जो लोकल्स के लिए वो फ्री होते हैं। नाज़रीन, इसी बीच में एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम के चाडोरा इलाके से। साबिक वजीर MLA जावेद मुस्तफा मीर ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को खैरबाद कहा। जावेद मुस्तफा मीर हल्का चाडोरा से लगातार 3 बार असेंबली मेंबर के तौर पर कामयाब रहे। 35 से 370 की धारा मनसूखी के बाद जावेद मुस्तफा मीर ने भी दीगर कई PDP लीडरान की तरह पार्टी को उस वक्त रुखसत किया और बाद में तकाजा था कि शायद वो किसी रीजनल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन डॉक्टर शाह फैसल ने अपनी पार्टी लॉन्च की और उसके बाद उन्होंने तजुर्बे के तौर पर जावेद मुस्तफा की खिदमत को हासिल करना चाहा। खिदमत उतनी थी कि डॉक्टर शाह फैसल उसके बाद
जलवा अफरोजी नहीं हुए। इस बीच में काफी मीटिंगें हुई और PhD की मीटिंग में जावेद मुस्तफा मीर PhD में JKPM को रिप्रेजेंट करते रहे। आज अभी बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने बुनियादी रुकनियत और पार्टी के सरपरस्त जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश किया। इस्तीफा कहां रवाना किया यह कहना अभी कबल वक्त होगा, लेकिन ताज़ा इतलात हैं और जराए के मुताबिक यह भी खबर है कि आइंदा कुछ दिनों में जावेद मुस्तफा मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, जावेद मुस्तफा मीर कुछ दिनों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को सरपरस्त आला और बुनियादी रुकनियत से फिलहाल रुखसत किया। जावेद मुस्तफा मीर लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी मंजरनामे में रहे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर लगातार इंतखाबात जीतते रहे। नाज़रीन, अब एक खबर जम्मू कश्मीर में क्रिकेट्स के लिए बड़ी अच्छी आ रही है। जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स अब जम्मू कश्मीर में दून इंटरनेशनल स्कूल HMT श्रीनगर में आज से बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने दून इंटरनेशनल एकेडमी का दून स्कूल में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी का बाकायदा आगाज किया। इतलात के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी एकेडमी में इस वक्त मुल्क भर और सब कॉन्टिनेंट के साथ मिडल ईस्ट में तकरीबन 70 के करीब इस वक्त एकेडमीज मौजूद हैं, जबकि मौजूदा दौर में कश्मीर के दून इंटरनेशनल स्कूल में आज से बाज़ाब्ता तौर पर यह एकेडमी काम करना शुरू हुई। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क ने आपको कई माह पहले आगाह किया था कि जम्मू कश्मीर के इस स्कूल में DIS में अब इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट एकेडमी होगी DIS में अब वो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी के तौर पर खिलाड़ी यहां पर कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। कोच को आप देख पा रहे हैं, ये भारत के नामवर कोच रह चुके हैं जिन्होंने न सिर्फ झारखंड, यूपी, बिहार बल्कि कई एक टीम्स के साथ बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया। उसके बाद मुंतजमीन की माने तो वो कहते हैं कि इस एकेडमी के यहाँ खुलने से यहाँ के क्रिकेट को और बेहतर करने के लिए मौका फराहम किया जाएगा। इस मौके पर दून स्कूल इंटरनेशनल श्रीनगर के प्रिंसिपल के अलावा कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। आज पहली बार हमने इन द हिस्ट्री ऑफ J&K वी हैव ब्रॉट द फर्स्ट क्रिकेट एकेडमी, दैट टू MS धोनी क्रिकेट एकेडमी ओवर हियर। मेयर सर आए हैं, उनकी टीम सर पूरी उनको ट्रेन करेगी। वी हैव, एज यू कैन सी, द पिचेस आर ऑलरेडी डन, सारा तैयारियां हैं। आप देख रहे हैं श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट में अब हम दोबारा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। नाज़रीन, श्रीनगर के इंतहाई अहम दो इलाके जड़ीबल और आलमगिरी बाजार में दरअसल 10 दिनों के लिए UT एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। हालांकि सरकारी मुलाजमीन पर यह हुक्मनामा सादर नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन ने इन इलाकों से मुख्तलिफ वार्ड से लाल बाजार, बोटाकदल और मुख्तलिफ वार्ड्स में जहां पर लगातार कोविड-19 के केसेस आने के बाद सरकार ने फैसला लिया कि 10 दिनों तक मुसलसल और मुतवातिर तौर पर कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं और किसी भी शख्स को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तमाम जरूरियाती जिंदगी को हासिल करना और इमरजेंसी की हालत में अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो वहां पर आपको पुलिस एहलकार जो है वो आपकी मदद करेंगे। मकामी लोगों से हमने जानना चाहा कि ये जो कोविड-19 के बीचों बीच में जड़ीपल और आसपास के इलाके में दुकानें, कारोबारी इदारे बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, इससे किस तरह के मुस्बत असरात हैं और मनफी असरात हैं। मुस्बत इसलिए क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, लेकिन मनफी इसलिए कि जो लोग रोजगार के हसूल के लिए घर से बाहर आते उन्हें अब शायद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौला सईद अफजल है, यहाँ भी कोई भी कोरोना केस नहीं है, एक भी नहीं है। पता नहीं इन्होंने कैसे ये बंद कर दिया ये रास्ता है, ना ऐलान हुआ ना कुछ हुआ, इन्होंने ऐसे ही, मैंने भी मोबाइल में पढ़ा है ये व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे वाड़े हो गई है ये। और नाज़रीन, अगली खबर जम्मू कश्मीर में जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आज PDD मुलाजमीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन ने आज कहा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के साथ इस दफ्तर के फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना मुहाल है। उन्होंने कहा कि उन्हें एरियर्स हासिल करने के लिए कई बार सरकारी दफातरों का रुख करना पड़ा, लेकिन वो बेमानी रहा। सबसे बड़ी अपील हमारी आज लोगों के साथ ये है, लोगों के लिए ये है कि वो अपनी जितने भी बिजली के बकाया जात हैं वो जल्द से जल्द बैंक में जमा कराएं। कुछ मुश्किलात ऐसे हैं कि हमारे मुलाजमीन पे भी जो प्रेशर बढ़ रहा है
इतना प्रेशर ज़्यादा है कि 24 घंटे मुलाजिम काम कर रहे हैं। इसकी एवज में हमारी तनख्वाहें कभी 15 को कभी 20 को दी जाती हैं। मेहरबानी करके हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो हमारी तनख्वाहें। लेसर कोकरनाग से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने इतला दी है कि कल के उस बदकिस्मती से हादसा पेश आने के बाद, पहले आपको बता दूं, ये जो पानी का ज़ख़ीरा यहाँ पे किया जाता है, इसको कई बार मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया की नोट्स में लाया और इससे फेंसिंग का मुतालबा किया और उसके बाद एक छोटा सा विकेट गेट लग जाता ताकि पानी हासिल करते या इससे सफाई वगैरह के वक्त इसमें हादसा पेश ना आया। लेकिन 21 सितंबर को एक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई। उसके बाद आज मुत्तलका डीडीसी मेंबरान ने खुसूसी दौरा किया और दौरे के दौरान मकामी लोगों की फरियाद सुनी, मांगे सुनी। हालांकि अभी देर बहुत हो चुकी है, नुकसान उठाया गया है, लेकिन इसके अलावा मुत्तलका अफसरान और अहदेदारान ने यकीन दिलाया कि फेंसिंग और बाकी जो कुछ किया जाना तकरीबन अभी तय है उसको बहुत जल्द शुरू किया जा सके। वाज़ेह रहे इस इलाके में एक चश्मा है और फेंसिंग के बगैर था और मकामी लोगों ने फेंसिंग न होने का शाखसाना उठाया। इस दौरान आज एडमिनिस्ट्रेशन यकीन दिलाया कि लेसर नागबल कोकरनाग में रवां हफ्ते को जो 21 तारीख को हादसा पेश आया, इससे अब दोहराने की शायद ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अब इससे फेंसिंग वगैरह का अमल पूरा किया जाएगा। सुबह ही पहले डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को मिला, उनसे मैंने बात की इसी वाक़े के मुतल्लक। तो उन्होंने एसीडी साहब को, फिर एसीडी साहब ने बीडीओ साहब के साथ बात की, मैंने तहसीलदार साहब के साथ बात की। ऑन वार फुटिंग इस पे काम होगा। पहले हमारा ये इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि ये पहले इसकी फेंसिंग हो ताकि ये वाक़या रिपीट ना हो। तो मुझे उम्मीद है, इसका अभी जायज़ा लिया जा रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट से। मुझे उम्मीद है दैट द वर्क विल बी स्टार्टेड ऑन वार फुटिंग बेसिस एंड इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 2। इधर डाइट कुपवाड़ा की तरफ से एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें तुलबा को कोविड-19 के दौरान किस तरह के इक़दाम उठाए जाने हैं उस पर भी बातचीत की गई। डाइट कुपवाड़ा की तरफ से हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिला भर के 2 असातिज़ा को तरबियती प्रोग्राम में शामिल किया गया ताकि स्कूली बच्चों को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। डाइट की तरफ से ये यहाँ पर जो ये प्रोग्राम जो किया रिगार्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ स्कूल और चिल्ड्रन, इसको हम इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इंश्योर करें अपने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हमारे हैं राइट फ्रॉम प्राइमरी क्लास टू सीनियर सेकेंडरी क्लास, उनके हेल्थ और वेलनेस को अपने इंस्टीट्यूशंस में इंश्योर करें। तो चूँकि कुपवाड़ा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ ये प्रोग्राम सबसे पहले एक इनिशिएटिव के तौर पर शुरू किया गया और इसमें हमने एक प्राइमरी वर्क पहले ही किया है। वी हैव आइडेंटिफाइड सम 1900 स्कूल्स जहाँ से हम 2 टीचर्स को बुला रहे हैं और इन टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए हमने आरपीज को ऑलरेडी दे हैव बीन नॉमिनेटेड। इस प्रोग्राम का जो सिलेबस है इट हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय डेवलप। इधर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए ई सर्विस का बाकायदा आगाज किया और नए फ्लेट से दूर दराज इलाकों के लिए मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने और शाम देर घेर तक बस सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है। वाज़ेह है कि काफ़ी टाइम से यह तजवीज़ ज़ेर गौर है कि एसआरटीसी में अब जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक बस सर्विस का इस्तेफादा आम लोगों को मिल सके। 500 ट्रक और बस मिला करके स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इस साल शामिल किया जाएगा, जिसमें 227 बसें होंगी और 277 ट्रकें होंगी। अभी 145 बसें आ गई हैं, बाकी सब अक्टूबर अंत तक आ जाएंगी। आज 25 सितंबर को श्रीनगर से 45 बसें कश्मीर डिवीज़न के लिए समर्पित की गई हैं। और अब नाज़रीन एक तिजारती खबर शामिल करते हैं। एराइज हुंडई श्रीनगर की तरफ से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें आरटीओ कश्मीर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और इस मौके पर एक नई गाड़ी को भी लॉन्च किया गया। मोटरसाइकिल नामी ये गाड़ी जो है होंडा CB 200X होगी और इस मोटरसाइकिल को आज रवाना किया गया।
इस मौके पर RTO कश्मीर ने जानकारी देते हुए कहा कि नया ट्रांसपोर्ट अपनी जगह, लेकिन पब्लिक को एहतियात के तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह का कमर्शियल ट्रांसपोर्ट मार्केट में आए उससे आम लोगों को फ़ायदा तो होता है, लेकिन आम लोगों को अपनी सवारी जो है, अपनी गाड़ी जो है उसको एहतियात से चलाना होगा ताकि सड़क हादसा को रोका जा सके। It's a wonderful bike and very good horsepower bike, and you know that these Honda bikes and as well as the other items of Honda, they have been always good and they have stood the test of time. And this is a very good bike, although the range of the weight of the bike is about 145, and including some accessories, it might go about 160, 165. और नाज़रीन, IAS इम्तहानात में जम्मू कश्मीर के 6 और जम्मू के कुछ लोगों ने अब IAS जो है उसको पास किया। इधर दूर अनंतनाग के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम अहमद भट्ट वालिद मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने भी बड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद IAS क्वालिफाई किया। डूरू शाहबाद फ्रंट के साथ साथ साबिक़ वज़ीर फारूक अहमद अंद्राबी ने न सिर्फ उन्हें मुबारकबाद पेश की है, बल्कि उन्होंने कहा कि डूरू और आसपास का इलाका इस तरह के चमकते सितारों से यहाँ की अजीम रिवायत को बरकरार रखा जा सकता है। वाज़ह है कि जम्मू कश्मीर के कई गरीब घरानों से IAS में कई लड़कों ने अब की बार ये टॉप किया और साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अब डॉक्टर शाह फैसल के बाद और या उससे पहले भी इस तरह का सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रखा जा सके। तो स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक की नशरियात में अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।